کہاں چلے گئے تھے تم؟ سعد اسے دیکھتے ہی چلایا. وہ کچھ کہے بغیر اندر چلا آیا. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. سعد دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے آ گیا. سالار اپنی جیکٹ اتار رہا تھا. کہیں نہیں گیا تھا. اس نے جیکٹ لٹکاتے ہوئے کہا, تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا تلاش کیا, کہاں کہاں فون کیا, اور اب تو میں اتنا پریشان ہو چکا تھا کہ پولیس کو فون کرنے والا تھا. تم آخر اس طرح نماز چھوڑ کر گئے, کہاں تھے؟ سالار کچھ کہے بغیر اپنے جوگرز اتارنے لگا. میں نے تمہیں بتایا ہے نا, کہیں نہیں. تو پھر اب تک کہاں تھے؟ سعد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. مسجد کے پچھلے حصے میں فٹ پاتھ پر. اس نے اطمینان سے کہا, واٹ, اتنے گھنٹے تم وہاں فٹ پاتھ پر برف میں بیٹھے رہے ہو؟ سعد دم بخود رہ گیا. ہاں, کوئی تک بنتی ہے اس حرکت کی. وہ جھلایا. نہیں, کوئی تک نہیں بنتی. سالار نے اسی طرح سیدھا بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا, کچھ کھایا ہے؟ نہیں. تو کھانا کھا لو. نہیں, بھوک نہیں ہے. وہ اب چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا. سعد اسے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا. تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے, بتا سکتے ہو مجھے؟ سالار نے گردن کو ہلکی سی حرکت کے ساتھ اسے دیکھا. کوئی مسئلہ نہیں, بے تاثر لہجے میں کہا گیا. میں سمجھا تم اپنے اپارٹمنٹ چلے گئے ہو, مگر وہاں بار بار رنگ کرنے پر بھی تم نہ ملے. سعد بڑبڑا رہا تھا. سالار کی نظریں چھت پر ہی تھیں. اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا. آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم. سعد نے ناراضی سے کہا. وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا. کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا. پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا. اس نے ابھی آنکھیں بند کی تھی جب اس نے سالار کی آواز سنی. سعد. ہاں. اس نے آنکھیں کھول دی. یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا. اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا. صراط مستقیم, صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. جانتا ہوں, مگر یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا. سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی. سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ. نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا. اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں. اچھا کام کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو, کسی کی مدد کی گئی ہو, کسی پر مہربانی کی گئی ہو, وہ اچھا کام ہوتا ہے. اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے. ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے, جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی. اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے. وہ عجیب آدمی تھا. بکواس بند کرو اور سو جاؤ, مجھے بھی سونے دو. اس نے کمبل لپیٹ لیا. سالار کو حیرت ہوئی. وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ. سعد ایک بار پھر دھاڑا. اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے تم سے ایک معمولی سا سوال کیا ہے. سالار نے بڑے تحمل سے کہا. سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. اس نے لیمپ آن کر دیا. تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا؟ کچھ بھی نہیں. تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے. مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے, وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا. مجھے سکون نہیں ملا, میں چھوڑ آیا. اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا. تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے. تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینما, تھیٹر, بار اور کلب ہیں. مسجد تمہارے لیے نہیں ہے. تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا پل کے جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا. تمہارے جیسے شخص کو جو نماز سے بھاگ جاتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, وہ صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے, نہ اس پر آ سکتا ہے. تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں, نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. سعد کچھ بول نہیں سکا. مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا. سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھتا رہا. تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار, اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا. سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ دوسری آواز کی گونج اٹھی تھی. ہاں, میں واقعی نہیں سمجھ سکتا. لائٹ آف کر دو, مجھے نیند آ رہی ہے. اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی. مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے. صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا. سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا. سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا. تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا. بھاگا تو نہیں, تم سو رہے تھے, میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا. سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا. کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے. یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنک کر کہا. اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہنے کے بجائے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گئے. شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے, میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں.
साद ने दूसरे सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन सी बातों से? सालार ने गर्दन को हल्का सा तिरछा करते हुए इसी तरह लेटे साद से पूछा। वही सब कुछ जो मैंने गुस्से में आकर रात को तुमसे कह दिया था। साद ने माजत खाना अंदाज में कहा। नहीं, मैं ऐसी छोटी मोटी बात पर तो नाराज नहीं हो सकता। तुमने ऐसी कोई बात की ही नहीं जिस पर तुम्हें एक्सक्यूज करने के लिए यहाँ आना पड़ता, सालार ने उसी अंदाज में कहा। फिर तुम इस तरह अचानक मेरे अपार्टमेंट से क्यों आ गए? साद बज़िद हुआ। बस मेरा दिल घबराया और मैं यहाँ आ गया, और चूंकि सोना चाहता था इसलिए आंसर फोन लगा दिया, सालार ने पुरसुकून अंदाज में कहा। फिर भी मैं ये महसूस कर रहा था कि मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सुबह से बहुत पछता रहा हूँ। जाने दो इसे, उसने उसी तरह चेहरा सोफे पर छुपाए हुए कहा। सालार, तुम्हारे साथ आजकल क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो है। कुछ अजीब से होते जा रहे हो तुम। इस बार सालार एकदम करवट बदलते हुए सीधा हो गया। चित लेटते साद की तरफ देखते हुए उसने पूछा, मसलन कौन सी बात अजीब सी होती जा रही है मुझमें? बहुत सारी हैं। तुम बहुत चुप चुप रहने लगे हो, छोटी छोटी बातों पर उलझने लगे हो। ये बात मुझे बता रहा था कि यूनिवर्सिटी जाना भी छोड़ा हुआ है तुमने, और सबसे बड़ी बात कि मजहब में दिलचस्पी ले रहे हो। उसके आखिरी जुमले से सालार के माथे पर तेवरियां आ गई। मजहब में दिलचस्पी? ये तुम्हें गलत फहमी है। मैं मजहब में दिलचस्पी लेने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सुकून हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। मुझे जिंदगी में कभी इस तरह का और इस हद तक का डिप्रेशन नहीं हुआ जिसका शिकार मैं आज कर लूँ, और मैं सिर्फ इस डिप्रेशन से निजात हासिल करने के लिए रात नमाज पढ़ने के लिए गया था। उसने बहुत तुर्शी से कहा। डिप्रेशन क्यों है तुम्हें? साद ने पूछा। अगर ये मुझे पता होता तो मुझे यकीनन डिप्रेशन ना होता। मैं अब तक उसका कुछ ना कुछ कर चुका होता। फिर भी कोई ना कोई वजह तो होगी। यूं बैठे बिठाए डिप्रेशन तो नहीं हो जाता। साद ने तबसरा किया। सालार जानता था वो ठीक कह रहा है, मगर उसे वजह बताकर खुद पर हंसने का मौका फराहम नहीं करना चाहता था। किसी दूसरे के बारे में तो मुझे पता नहीं, मगर मुझे तो बैठे बिठाए ही हो जाता है। सालार ने कहा। तुम कोई एंटी डिप्रेसेंट लेते हो? साद ने कहा। मैं उनका ढेर खा चुका हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल लेते। मैं ये काम तो कभी नहीं करूँगा। मैं तंग आ चुका हूँ लोगों से मिलते मिलते। कम अज कम अब तो मैं नहीं मिलूंगा, सालार ने बेख्तियार कहा। पहले किस सिलसिले में मिलते रहे तुम? साद ने कुछ चौंक कर तजस्सुस के आलम में पूछा। बहुत सी बातें थी, तुम उन्हें रहने दो। अब वो चित लेटा छत को घूर रहा था। तो फिर तुम ऐसा किया करो कि इबादत किया करो, नमाज पढ़ा करो। मैंने कोशिश की थी, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। ना मुझे वहाँ कोई सुकून मिला, ना ही मैं ये जानता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो क्या है, क्यों पढ़ रहा हूँ। तो तुम ये जानने की कोशिश करो कि सालार ने उसकी बात काट दी। अब फिर रात वाली बहस शुरू हो जाएगी, सिरात मुस्तकीम वाली, और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। जब मुझे यही नहीं पता कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो फिर मैं नमाज कैसे पढ़ सकता हूँ? तुम नमाज पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा सिरात मुस्तकीम क्या है। कैसे? तुम खुद ही गलत कामों से बचने लगोगे, अच्छे काम करने लगोगे। साद ने वजाहत करने की कोशिश की। मगर मैं कोई गलत काम नहीं करता, और ना ही मुझे अच्छे काम करने की ख्वाहिश है। मेरी जिंदगी नॉर्मल है। तुम्हें यह एहसास भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत, जब तक कि सालार ने उसकी बात काट दी। सही और गलत काम मेरा मसला नहीं है। अभी तो मुझे बस बेसुकूनी रहती है, और उसका ताल्लुक मेरे कामों से नहीं। तुम वो तमाम काम करते हो जो इंसान की जिंदगी को बेसुकून कर देते हैं। मसलन, सालार ने छुपते हुए लहजे में कहा, तुम पोर्क खाते हो। कम ऑन, वो बेइख्तियार बिलबिलाया। पोर्क यहाँ कहाँ आ गया? तुम मुझे एक बात बताओ। सालार उठकर बैठ गया। तुम तो बड़ी बाकायदगी से नमाज पढ़ते हो, बड़ी इबादत करते हो। नमाज ने तुम्हारी जिंदगी में कौन सी तब्दीलियां कर दी? मुझे बेसुकूनी नहीं है। हालांकि तुम्हारे फॉर्मूले के मुताबिक तुम्हें भी बेसुकूनी होनी चाहिए, क्योंकि तुम भी बहुत से गलत काम करते हो। सालार ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मसलन, मैं क्या गलत काम करता हूँ? तुम जानते हो, मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता, तुम दोहराओ। साद ने जैसे उसे चैलेंज किया। सालार उसे कुछ देर देखता रहा, फिर उसने कहा, मैं नहीं समझता साद कि सिर्फ इबादत करने से जिंदगी में कोई बहुत नुमायां तब्दीली लाई जा सकती है। अच्छे कामों या किरदार का ताल्लुक इबादत करने या ना करने से नहीं होता। साद ने उसकी बात काट दी। मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि अपने मजहब में कुछ दिलचस्पी लो और इस्लाम के बारे में कुछ इल्म हासिल करो, ताकि अपनी इस गलत किस्म की फिलॉसफी और सोच को बदल सको। मेरी सोच गलत नहीं है। मैंने मजहबी लोगों से ज्यादा झूठा, मुनाफिक और धोखेबाज किसी को नहीं पाया। मैं उम्मीद करता हूँ तुम बुरा नहीं मानोगे, मगर मैं सच कह रहा हूँ। अब तक मुझे 3 ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जो बहुत मुसलमान बनते हैं और इस्लाम की बात करते हैं, और तीनों मुनाफिक हैं। वो बड़ी तलखी से कह रहा था। सबसे पहले एक लड़की से मिला, वो भी बड़ी मजहबी बनती थी, पर्दा करती थी, बड़ी पारसा और पाकबाज होने का ड्रामा करती थी। साथ में एक लड़के के साथ अफेयर चला रही थी। अपने मंगेतर के होते हुए उसके लिए घर से भाग भी गई। उसे जरूरत पड़ी तो उसने एक ऐसे शख्स की मदद भी ली जिसे वो बुरा समझती थी।
यानी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में कोई आड़ नहीं समझा उन मोहतरमा पारसा खातून ने। उसके लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट थी। उसके बाद मैं एक ऐसे आदमी से मिला जिसने दाढ़ी रखी हुई थी, बड़ा पक्का और सच्चा किस्म का मुसलमान था। लेकिन उसने भी उस लड़की की मदद नहीं की जिसने उससे भीख मांगने की हद तक मदद मांगी थी। उसने उस लड़की से शादी नहीं की जिसे वो मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ़ बनाता रहा। अभी कुछ अर्सा पहले मैं यहाँ अमेरिका में उससे मिला तो उसकी दाढ़ी भी गायब हो चुकी थी, शायद उसके इस्लाम के साथ। वो हंसा। और तीसरे तुम भी पोर्क नहीं खाते, सिर्फ ये एक हराम काम है जो तुम नहीं करते, बाकी सब तुम्हारे लिए जायज़ है। झूठ बोलना, शराब पीना, जिना करना, क्लब में जाना, गीबत करना, दूसरों का मजाक उड़ाना। हालांकि वैसे तुम बहुत नेक हो, तुमने दाढ़ी रखी हुई है, तुम हमारा दिमाग खा जाते हो इस्लाम की बातें कर करके। ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाने पर तुले रहते हो, हर बात में मजहब का हवाला लेकर आते हो। ये आयत और वो हदीस, वो आयत और ये हदीस, इसके अलावा तुम्हारी ज़बान पर और कुछ होता ही नहीं। और जब मैं तुम्हारा अमल देखता हूँ तो मैं ज़र्रा भर भी तुमसे मुतासिर नहीं होता। कितना मुश्किल होता है इस्लाम के बारे में तुम्हारा लेक्चर सुनना, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मुझ में और तुम में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। तुम दाढ़ी रखकर और इस्लाम करके वो सारे काम करते हो जो मैं दाढ़ी के और इस्लाम की बात किए बगैर करता हूँ। इबादत क्या इंकलाब बर्पा करती है तुम्हारी ज़िंदगी में, सिवाय इसके कि तुम्हें खुशफहमी हो गई है कि तुम तो सीधे जन्नत में जाओगे और हम सारे दोज़ख में। तुम्हारे कौल और फेल में अगर ये तजाद ना हो तो मैं कभी तुमसे ये सब ना कहता, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम दूसरों को मज़हब की तरफ राग़िब करने की कोशिश ना किया करो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तुम खुद भी मज़हब के सही मफ़हूम से वाकिफ़ नहीं हो। अब इन सारी बातों को माइंड मत करना। सालार अब टेबल पर पड़ा एक सिगरेट सुलगा रहा था। साद तकरीबन गूंगा हो गया था। ठीक है, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मगर अल्लाह इंसान को माफ़ कर देता है। और मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि मैं बहुत ही अच्छा मुसलमान हूँ और मैं ज़रूर जन्नत में जाऊँगा, लेकिन मैं अगर एक अच्छा काम करता हूँ, दूसरों को उसकी हिदायत करता हूँ, तो ये अल्लाह की तरफ से मुझ पर फ़र्ज़ है। साद ने कुछ देर खामोश रहने के बाद उससे कहा, साद, तुम खामखा दूसरों की जिम्मेदारी अपने सर पर मत लो। पहले अपने आप को ठीक करो, फिर दूसरों को ठीक करने की कोशिश करो, ताकि कोई तुम्हें मुनाफिक ना कह सके। और जहाँ तक अल्लाह के माफ़ कर देने का ताल्लुक है, तो अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि वो तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर सकता है, तो फिर वो हमें भी माफ़ कर सकता है हमारे गुनाहों के लिए। तुम अगर ये समझते हो कि लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करने से तुम्हारी नेकियों में इजाफा होगा और तुम अपने गुनाहों समेत अल्लाह के करीब हो जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा। बेहतर है तुम अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करो। सिर्फ अपने आप को देखो, दूसरों को नेक बनाने की कोशिश ना करो। हमें बुरा ही रहने दो। उसने तुर्शी से कहा। उस लम्हे उसके दिल में जो आया उसने साद से कह दिया। जब वो खामोश हुआ तो साद उठकर चला गया। उस दिन के बाद उसने दोबारा कभी सालार के सामने इस्लाम की बात नहीं की।